Jai Hind and welcome to third lecture of geographical series in 30 days CIPF crash course. This lecture is in continuation with the last lecture. जो हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं. सो लेट अस बिगिन. नेक्स्ट चार टर्म्स है. आपको इसका डिफरेंस समझना है. मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल एंड मिनरल और. देखिए मिनरल जो होता है that is a substance with definite chemical composition. Unlike most rock, they are known as mineral. जैसे कि मान लीजिए कि किसी रॉक में उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है कि उसमें गोल्ड की कंटेंट पर्टिकुलर परसेंट है 4%. सिमिलरली उसमें जिंक की कंपोनेंट जो है उसमें 2%. तो दिस इज द हैविंग डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड दैट इज वाई दैट अर्थ क्रस्ट और दैट रॉक इज नोन एज mineral. Next is mineral fuel. See, mineral fuels are those which are non-metallic minerals such as coal and petroleum. These are the mineral fuels. अब mineral आप समझ गए. They are having definite chemical composition. Mineral fuel is non-metallic mineral like coal and petroleum which are used as fuel. Now next is mineral oil. See, it is a mixture of hydrocarbons in solid, gaseous or liquid form that is found in the earth. It is commonly known as petroleum. See, mineral oil is petroleum. It is a mixture of gaseous, liquid or solid form that is found in the earth. इसका एक पॉइंट आप याद रखेंगे, कमर्शियल प्रोडक्ट, इट बिकेम कमर्शियल प्रोडक्ट ओनली इन 1859. नेक्स्ट इज मिनरल ओर. सी, मेटल्स इन द रॉ स्टेट दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ दैट इज नोन एज मिनरल ओर. आई होप आपको ये चारों वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. Mineral is having definite chemical composition. Mineral fuel is non-metallic minerals which are used as fuel. Mineral oil is petroleum because it is a mixture of gaseous, solid and liquid form that is found in the earth. Mineral ore is raw state that is extracted. Metals in their raw state that is extracted from the earth. Next is mixed farming. This is also very important. See, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमने क्रॉप रोटेशन पढ़ा था. क्रॉप रोटेशन में हमने देखा कि सक्सेशन में सेम फील्ड में लेकिन डिफरेंट सीजन में क्रॉप को हम कल्टीवेट कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को. फिर हमने पढ़ा था इंटर क्रॉपिंग. उसमें क्या था, इंटर क्रॉपिंग में मोर देन टू क्रॉप्स वर cultivated in the same field in the same season. Now next is mixed farming. इसमें क्या हो रहा है कि it is a type of farming in which cultivation of crops and raising of livestock both go in hand in hand. देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, ओनली द कल्टिवेशन ऑफ ओनली द रेजिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स, मिल्च कैटल, दैट इज नोन एज डेयरी फार्मिंग. नाउ मिक्स्ड फार्मिंग वी आर कल्टिवेटिंग crops and raising livestock that go hand in hand. I hope these concepts is getting cleared and understood by you. Next is nomadism. This is also very important term. ये एक way of life of people है who require to shift their dwellings frequently from place to place in search of pastures for animal. नोमैडिज्म. देखिए नेक्स्ट है हमारा ओपन कास्ट माइनिंग. देखिए ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है कि सॉइल और उसके आउटवर्ड कवर को हम पहले रिमूव कर देते हैं और फिर मिनरल ऑयल को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं क्वायरिंग से. देखिए क्वायरिंग क्या होता है, ये आप आगे के लेक्चर्स में समझेंगे. अब बस इसमें ये समझिए देसी तरीका में कि अगर किसी एरिया में मिनरल्स या मिनरल या और वहाँ पे पाए हुए हैं, वहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं, तो ओपन कास्ट माइनिंग में हम क्या करते हैं कि पहले सॉइल के ऊपर लेयर को हटा देते हैं, आउटर कवर को, और उसके बाद फिर हम उस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय क्वायरिंग. And this method is known as open cast mining. Next is pastoralism. An economy that solely depends upon animals, that is pastoralism. And ये आप कैसे डिफर करेंगे nomadic pastoralism से, means that is dependent upon animals for their subsistence. Pastoralism का आप example समझिए, modern ranches that is done in Australia, that is the commercial pastoralism that is done in Australia is the pastoralism. Next is plantation agriculture. See, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में वन क्रॉप फार्मिंग इज डन फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट. एग्जाम्पल टी बगान इन असम. नेक्स्ट इज क्वेरी. सी, क्वेरी इज ओपन एयर एक्सकेवेशन इन विच स्टोन इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग एंड ब्लास्टिंग. दिस इज क्वेरी. को टर्म सेंस कर रहा होगा. क्वेरिंग जो हमने भी ओपन कास्ट माइनिंग में पढ़ा था, यहाँ पे हम ब्लास्ट करते हैं और स्टोन को, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज क्वेरी. Next is ranches. Ranching means large stock farms must are bred and reared on commercial scale. They are especially found in the United States. देखिए यूनाइटेड स्टेट्स आप ध्यान रखेंगे. ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न मेथड. यू नीड टू रिमेंबर दिस वर्ड, स्लैश एंड बर्न मेथड. आपको इस वर्ड से भी कुछ समझ आ रहा होगा.
देखिए स्लैश एंड बर्न मेथड और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये एक प्रैक्टिस है, फार्मिंग प्रैक्टिस इन विच patch of ground is cultivated for a period of few years until the soil is partly exhausted. After that, the land is left to natural vegetation while cultivation is carried on somewhere else. And in that course, what they do is when they leave the land, they generally put while before leaving the land, they generally put the land on fire so that they could return to this land in future after 2 3 years when when the natural vegetation has regained its capacity to cultivation has regained its natural capacity of further vegetation. See, this is the practice is known as shifting agriculture. Next is subsistence. Next is subsistence agriculture. See, the फार्मिंग अगर कुछ फार्मर्स लोग सिर्फ अपने घर के कंजम्पशंस के लिए कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. While when the farming is done for generally commercial, then that is commercial agriculture or truck farming that is practiced in USA developed state. Next is transhumance. See, it is the seasonal movement of herdsmen with their livestock from and to the mountains or between the regions of different climates. This you have to remember. The keyword here is from and to the mountains or between the different climates and the movement of herdsmen along with their livestock. Next is truck farming. See, growing of vegetables in around the urban center to meet daily demand of people is known as truck farming. देखिए नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स आपको देखना है. देखिए आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 2014 में नए स्टेट्स बने हैं. तो हो सकता है यूपीएससी कंपेयर में आपसे ये सवाल पूछ ले. आप बस ये ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जोग्राफिकल एरिया किसका ज़्यादा है. तो आप आंध्र प्रदेश का ज़्यादा है, डिस्ट्रिक्ट इसमें ज़्यादा है, तो अगेन आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है. आप दोनों के सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी रेट को ध्यान रखेंगे तो अगेन सेक्स रेशियो ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ मोर 996 वाइल ऑफ तेलंगाना इज़ 988 एंड लिटरेसी रेट इज़ अगेन ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ मोर. तो आप इसमें कीवर्ड याद रखेंगे कि एवरीथिंग ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ मोर देन तेलंगाना हियर. नेक्स्ट हम मूव करते हैं लिटरेसी रेट. देखिए लिटरेसी रेट जो है 84.04% टोटल इंडिया का लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. फीमेल लिटरेसी रेट इज 65.46%. नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है कि यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप का 93.91% इट इज़ द हाईएस्ट. नेक्स्ट इज दादर एंड नगर हवेली 77.65%, इट इज़ द लोवेस्ट. फीमेल में भी क्लासिफिकेशन है एंड स्टेट में केरला का सबसे हाईएस्ट है, बिहार का सबसे लोवेस्ट है. फीमेल में भी केरला का सबसे हाईएस्ट है एंड राजस्थान का सबसे लोएस्ट है. ये पीडीएफ्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस कर लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो. देखिए सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो या HCR क्या होता है. तो ये परसेंट ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन इज़ द पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो. ये 2004-05 का डेटा है इंडिया, बट स्टिल रेलेवेंट फॉर एग्जाम, दैट्स व्हाई आई हैव कोटेड हियर. इंडिया का जो हेडकाउंट रेशियो अकॉर्डिंग टू 2004-05 इज 37.2. उड़ीसा इज द हाईएस्ट मीन्स 57.2 एंड केरला इज लोएस्ट 19.7. नेक्स्ट इज वर्क पार्टिसिपेशन रेट. देखिए वर्क पार्टिसिपेशन रेट का डेफिनेशन क्या है. टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन, दैट इज द वर्क पार्टिसिपेशन रेट. इंडिया का see these data is according to 2011. so you'll remember this state का जो वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो था 39.8% था इन 2011. स्टेट हाईएस्ट इज 51.9%, हिमाचल प्रदेश. यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप 29.1%. देखिए ये जो डेटा है ये 2011 के हिसाब से है, आप इसको ध्यान रख लेंगे. ये इंडिया का जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट 2011 में था दैट इज़ 39.8. लेटेस्ट डेटा जो है 49.8% 2017-18 लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो. एंड दिस हैज़ बिन लेटेस्ट जो डेटा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो का इस 49.8% 2017-18 में दिया गया है. एंड दिस वाज गिवन बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ये इस PDF को आप एक्सेस कर लेंगे टेलीग्राम से. नेक्स्ट इज रिलीजियस कम्युनिटी डेटा.
रिलीजियस कम्युनिटी डेटा में कई बार जोग्राफी से यहाँ से आते हैं, तो ये सेंसस 2011 से लिया हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, हिंदूज मुस्लिम। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अर्बन पॉपुलेशन। सी अर्बन पॉपुलेशन में आप ये डेटा को जो मैंने पेन से लिख रखा है आप उसमें देखेंगे कि इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन 2011 में 31.16% था, 2001 में 27.8% था। स्टेट विथ हाईएस्ट एंड स्टेट विथ लोवेस्ट एंड यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट एंड अर्बन यूनियन टेरिटरी विथ लोवेस्ट स्टेट पॉपुलेशन लिविंग इन द अर्बन एरिया। यू विल रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज, सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि किस डिकेड में नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था। तो यू नीड टू रिमेंबर जो पेन रेड पेन से जिसमें मैंने डाउन सर्कल बना रखा है, आप उसको याद रखेंगे। दीज आर द पीरियड्स वेयर रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हैज़ एक्चुअली डिक्लाइंड विद द बेस टू प्रीवियस। देखिए क्रूड डेथ रेट क्या मतलब, क्रूड बर्थ रेट या क्रूड डेथ रेट का मतलब आपसे हो सकता है सवाल पूछ ले, तो आप ये याद रखेंगे क्रूड डेथ रेट इज नंबर ऑफ डेथ अपॉन एवरेज पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ अपॉन एवरेज पॉपुलेशन पर 1000 persons. This is the crude death rate. That's all for this lecture. I hope these lectures are really making sense to you in your quick revision. हम next lecture में मिलेंगे with new topic. Thank you.